Good morning students, welcome back to your online classes. So today we are going to continue with Maths 2 chapter 2 Pythagoras theorem. Myself Fawzia Sayyed. Students, you have to note down that you have to watch each and every video on full screen mode. So let's continue with practice set 2.1. In previous video we have studied all about the theorems related to the Pythagoras theorem, okay, theorem of geometric mean, so Pythagorean triplet. So today we are going to continue with practice set 2.1, question number 1. So identify with reasons which of the following are Pythagorean triplets. So we have to find out that कि इसमें से Pythagorean triplets क्या होते हैं. Okay, so the very first is 3 5 4. So in this the bigger number is 5, so square of 5 is 25 and square of 3 plus square of 4 which is equals to 9 plus 16 equals to 25. So it is equal to 5 square is equals to 3 square plus 4 square. It means the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the other two numbers. So it means that this 3 5 4 are the Pythagorean triplets, because जो सबसे बड़ा वाला डिजिट होता है उसका स्क्वायर ये दोनों रिमेनिंग जो है उसके स्क्वायर के एडिशन के साथ इक्वल होना चाहिए. अगर वो इक्वल है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, so let's check for second one. Here second one is question is 4 9 12. So 12 का स्क्वायर इज़ 144 and the rest of 2 का स्क्वायर प्लस एडिशन इज इक्वल्स टू 16 plus 81 which is equals to 97, and this is not equal, right? This is not equal. The square of the largest number is not equal to the sum of the squares of the other two numbers. It means that it is not a Pythagorean triplet. Now third, here 13 square equals to 169 and the rest of the squares of the two numbers, sum of the squares of the two numbers is equals to 25 plus 144 equals to 169. So then we have 169 is equals to 169. It means 13 square is equals to 5 square plus 12 square. So here the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the other two numbers. So therefore it is a Pythagorean triplet. Now fourth one, here 74 square is equals to 5476 and 24 square plus 70 square is equals to 576 plus 70 का square is 4900 which is equals to 5476. So now 5476 is equal. It means 74 square is equal to 24 square plus 70 square. Again the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the other two numbers, right? So it is a Pythagorean triplet. Now fifth question, 27 square is equals to 729. Again the rest of the two squares is 10 square, that is 100, and 24 square is 576 and their sum is equals to 676. So it is not getting matched. It means that 27 square is not equal to 10 square plus 24 square. It means it is not a Pythagorean triplet. Easy. Sixth question, 61 square is equals to 3721 and the rest smaller 2 का square is 11 का square 121, 60 का square 3600. Then again in दोनों का addition 3721. It means that the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the other two numbers. It means it is a Pythagorean triplet. Now let's continue with question number 2. Here in the joining figure, angle MNP is equals to 90 degree. So here MNP, given information, this is 90 degree. Segment NQ is perpendicular to segment MP. So this NQ is perpendicular to MP and MQ equals to 9. So this is MQ. The value of MQ is equals to 9 and QP equals to 4. So QP equals to 4, मतलब ये 9 है और ये 4 है. तो हम लोग को NQ फाइंड करना है. तो हम लोग यहाँ पर थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ कर सकते हैं. थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है? दैट NQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू MQ इंटू QP, राइट? सॉरी, NQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू MQ इंटू QP, राइट? ये ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर बोलता है, बिकॉज 90 डिग्री से जो भी लाइन परपेंडिकुलर पास होती है अपोजिट साइड्स में, तो थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है? दैट NQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू MQ इंटू QP. So let's see solution in triangle MNP. Angle MNP is 90 degree given. Since segment NQ is perpendicular to MP, so we can apply theorem of geometric mean, that is NQ square equals to MQ into QP. So we want NQ, right? So NQ will be equal to under root MQ multiplied by QP, taking square root both the sides. So now the value of MQ is 9 and the value of QP is 4. So 9 का square root क्या होता है? 3, 4 का 2. So 3 2s are 6. So we have NQ is equals to 6 units. Now question number 3.
इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो हम लोग का क्यू पी आर है, नहीं आ रही है क्यू पी आर, तो ये क्या है 90 डिग्री है। सेगमेंट पी एम इज़ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर विच इज़ क्यू डैश एम डैश आर। ओके, सो पी एम इक्वल्स टू 10, ये 10 दिया है और पूछ रहा है, और क्यू एम इक्वल्स टू 8, तो पूछ रहा है क्यू आर का है हम लोग को यहाँ से क्यू टू आर, तो हम लोग को एम आर जानने की ज़रूरत है। अगर एम आर चाहिए हम लोग को, तो हम लोग को गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, दैट दिस पी एम इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर, राइट। सो हम लोग यहाँ पर भी थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करके एम आर निकाल सकते हैं। अगर एक बार एम आर मिल गया तो यहाँ पर दिया है क्यू डैश एम डैश आर, so we can find this QR also. So first in triangle PQR angle QPR is equals to 90 degree. Given information segment PM is equals to perpendicular to QR, right? So by theorem of geometric mean PM square is equals to QM into MR, right? QM into MR, right? ये QM है बेटा, theorem of geometric mean. Then we have PM is equals to 10 का square is equals to 8 multiplied by MR. So 10 का square. So MR is equals to 100 upon 8. So we'll have 12.5. So now what is QR? QR is equals to QM plus MR. So we have QM as 8 and MR as 12.5. So what we're going to do? यहाँ पर ये हम लोगों ने एडिशन भी क्यों किया, बिकॉज क्यू डैश एम डैश आर गिवन इन्फॉर्मेशन में था। सो क्यू एम मिला 8, एम आर मिला राइट नाउ थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स 12.5. सो वी हैव क्यू आर इज इक्वल्स टू 20.5 यूनिट्स. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सी एडजॉइनिंग फिगर, फाइंड आर पी एंड पी एस यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन ट्राइंगल पी एस आर. ये फिगर में से क्या करना है हम लोग को, आर पी एंड पी एस फाइंड करना है यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो. आर पी का हम लोग का आर पी फाइंड करना है और पी एस फाइंड करना है. क्या दिया गया, ये 30 डिग्री एंगल है और ये एस आर क्या है 6 है. तो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट. इन ट्राइंगल पी एस आर, ये जो पी एस आर ट्राइंगल है इसमें जो एंगल एस है वो 90 डिग्री है और एंगल पी है 30 डिग्री, हम लोग को बता दिया. तो 30 90, तो रेस्ट केवल एंगल आर क्या होगा हम लोग का 60 होगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, राइट, क्योंकि एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है. तो एक 90 एक 30 है, ऑलरेडी 120 हो गया, तो रेस्ट जो बचा वो 60 रहेगा. ओके, तो एंगल आर है 60 डिग्री, तो ट्राइंगल पी एस आर इज 30 60 90 ट्राइंगल. अब ये ट्राइंगल क्या हो गया 30 60 90 का, मतलब इसके एंगल क्या है 30 60 90. सो 30 60 90 एंगल क्या कहता है, दैट जो 30 के जो अपोजिट वाली जो साइड होती है आर एस, वो क्या रहती है हाफ ऑफ आर पी, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस रहती है, राइट. सो आर एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर पी. ये क्या कहता है, साइड ऑफ अपोजिट टू 30 डिग्री, राइट. सो व्हाट इज आर एस, आर एस इज 6 विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर पी. सो नाउ व्हाट वी हैव आर पी, तो 2 उधर चला जाएगा 12 हो जाएगा. सो आर पी विल बी इक्वल टू 12 यूनिट्स. तो हम लोग को आर पी मिल गया, एक चीज़ फाइंड करने की मिल गई. अब पी एस, अब ये फाइंड करना है पी एस. अब पी एस क्या करेंगे हम लोग, अब ये 60 के अपोजिट की साइड में, तो 60 के अपोजिट की साइड में क्या होता है, √3/2. √60 के अपोजिट की साइड कौन सी होती है, एस पी. तो एस पी विल बी इक्वल टू वॉट, √3/2 ऑफ पी आर. तो पी आर क्या हम लोग का हाइपोटेनियस. सो पी एस इज इक्वल्स टू √3/2 अपॉन पी आर या आर पी, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एज इट इज़ 30 60 90 डिग्री थ्योरम. सो व्हाट वी वांट पी एस, तो पी एस एज इट इज़ रहेगा √3/2. आर पी क्या मिला 12, तो 2 1 2 2 6 12. सो वी हैव 6 √3 यूनिट्स. सो आर पी इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स, पी एस इज इक्वल्स टू 6 √3 यूनिट्स. ओके, so now question number 5, for finding AB and BC with the help of the information given in the adjoining figure complete the following activity. तो हम लोग को AB और BC फाइंड करना है, जो भी फॉलोइंग एक्टिविटी हम लोग कंप्लीट करें. सॉल्यूशन, AB इक्वल्स टू BC गिवन है डायग्राम से, राइट. एंगल BAC इज इक्वल्स टू BCA, BAC इज इक्वल्स टू BCA विच इज़ इक्वल्स टू x. हम लोग उसको x नाम दे रहे हैं. इक्वेशन नंबर 1. तो नाउ इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. बट अभी हम लोगों ने एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है और उसको x बोल दिए, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस, मतलब एंगल A, जो एंगल A है वो x है और एंगल C क्या है x है. देखो एंगल BAC BC है, तो इट मीन्स दैट एंगल A और C क्या है हम लोग का x है, राइट. और ये B जो है वो 90 डिग्री. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल A हम लोगों के पास क्या है x है, एंगल C x है और एंगल B क्या दिया गया 90 डिग्री. तो ये इक्वेशन फॉर्म 1 यहाँ से आई कि हम लोगों ने ये दोनों को इक्वल प्रूफ किया x है. नाउ x प्लस x 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री. इधर आएगा 90, तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 इज़ 90 डिग्री. देन वी हैव x इक्वल्स टू 90/2.
x इक्वल्स टू 45, ये डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 45 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या मिली 45 डिग्री, बट x क्या था हम लोगों का BAC और BCA, तो BAC मतलब ये वाला एंगल और BCA मतलब ये वाला एंगल, दोनों क्या है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का थ्योरम है 45, 45, 90 का, दैट अब साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये हम लोग का 45, 45, 90 थ्योरम कहता है, राइट। तो क्या कहता है दैट जो भी अपोजिट साइड है 45 की वो क्या रहती है 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। सो AB इक्वल्स टू BC, AB और BC क्या है 45 के अपोजिट की साइड है, जैसे C की अपोजिट साइड AB है और एंगल A की अपोजिट साइड BC है। तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 1/√2 ऑफ AC, 1/√2 ऑफ AC। So 1/√2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज AC √8 दैट इज गिवन। सो 1/√2 8 का क्या होता है 2√2। कैसे 2√2 कैसे आया, एक्चुअली में दिया यहाँ पर ऑलरेडी दिया है बट फिर भी कैसे आया है √8 है, राइट। तो √8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो 2 हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, तो 2√2। सो वी हैव AB इक्वल्स टू BC, अभी √2 कट गया, क्या बचेगा 1 2 ज़ा 2, सो AB इक्वल्स टू BC विच इज़ इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। नाउ 6th क्वेश्चन, फाइंड द साइड इन द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। हम लोग को साइड फाइंड करनी है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। सो फाइंड द साइड इन पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल 10 सेंटीमीटर दिया है, उसका क्या फाइंड करना है हमें साइड और पैरामीटर। एक बार साइड मिल गई तो पैरामीटर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सोल्यूशन, ये क्वाड्रिलेटरल की साइन है, क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द गिवन स्क्वायर, ABCD बी द गिवन स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ AC, तो डायगोनल AC कितना है 10 सेंटीमीटर, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर भी x सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या स्क्वायर की सारी साइड तो सेम रहती है, तो हम लोग किसी को भी एक को भी कह देंगे, हम लोग क्या कहेंगे x कहते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC, अभी ये जो ट्राइंगल है स्क्वायर में से हम लोगों ने ये डायगोनल से जो एक ट्राइंगल अलग हो रहा है ABC, तो उसमें एंगल भी 90 डिग्री, एंगल ऑफ स्क्वायर तो सारे 90 डिग्री होते हैं, बट एक पर्टिकुलर को हम लोगों ने पकड़े और उसको 90 डिग्री कह रहे हैं, ठीक है 90 डिग्री। सो AC स्क्वायर, ये जो हम लोग का AC का स्क्वायर होगा इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। पाइथागोरस थ्योरम का रहता है ना दैट अपोजिट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, वो अप्लाई किए। फिर AC क्या हम लोग का 10, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको x बोला है साइड को, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो व्हाट विल गोइंग टू हैव, हाँ 10 का स्क्वायर इज 100, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, देन अगेन 2 इधर आएगा इक्वल्स टू की तो डिवाइड हो जाएगा, सो 2 1 2 5 Z, तो वील हैव x स्क्वायर इक्वल्स टू 50 एंड देन x इक्वल्स टू √50 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। नाउ √50 को कैसा लिख सकते हैं हम लोग √25/2, 25 मल्टीप्लाई बाई 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड √2 विल रिमेन एज इट इज, सो विल गेट x इक्वल्स टू 5√2। तो अभी साइड x क्या था हम लोग का साइड था, तो साइड क्या मिल गई हम लोग को 5√2। नाउ अभी हम लोग को पेरीमीटर भी फाइंड करना है, तो पेरीमीटर में के लिए कितने साइड्स जैसे 1 2 3 4, स्क्वायर में 4 साइड्स होती है, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 5√2 दैट इज अ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 20√2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल DFE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो DFE है वो हम लोग का 90 डिग्री है, FG परपेंडिकुलर टू ED, FG जो है वो ED से परपेंडिकुलर है, इफ़ GD इक्वल्स टू 8, GD 8 है और GF 12 है या FG 12 है, तो हम लोग क्या फाइंड करने बोल रहे हैं EG फाइंड करने बोल रहे हैं, दूसरा FD फाइंड करने बोल रहे हैं और तीसरा EF फाइंड करने। वेरी इजी, बहुत अच्छा है, पाइथागोरस से इजीली हो जाएगा ये। एक में थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करके हम लोग को पहले EG फाइंड करना है, एक बार EG मिल गया सो इट्स वेरी इजी, यहाँ पर तो पाइथागोरस थ्योरम करके DF फाइंड कर सकते हैं, EG मिल गया तो ये भी इजीली मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से ही। लेट्स सी हाउ, इन ट्राइंगल DEF, एंगल DF इज़ 90 डिग्री गिवन है और FG परपेंडिकुलर ED से, तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक की मीन क्या कहते हैं, FG स्क्वायर इज इक्वल्स टू EG मल्टीप्लाई बाई GD, है ना थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक में। तो FG स्क्वायर इज़ नथिंग बट 12, तो 12 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 12 स्क्वायर, राइट बेटा ये 12 स्क्वायर है, 12 रेज टू 2, ओके इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई EG, सो 12 का स्क्वायर इज़ 144, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 144 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई EG, फिर ये 8 इधर आएगा इक्वल्स टू, देखो 144/8 बनेगा EG जो यहाँ पर दिया, तो EG इक्वल्स टू कैंसिलेशन से 18 यूनिट्स मिलेगा, तो मतलब EG मिल गया 18, ओके।
नाउ व्हाट अबाउट ई एफ एंड एफ डी? सो सेकेंड हम लोग को क्या फाइंड करना है? एफ डी। तो एफ डी देखते हैं, ये फाइंड करना है। सो कैसे? इन ट्राइंगल एफ जी डी एंगल जी इज़ क्या? 90 डिग्री गिवन इन्फॉर्मेशन है। सो एफ डी स्क्वायर 90 के अपोजिट वाली जो भी साइड रहती है वो हाइपोटेनियस होती है। सो एफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है हम लोग का, दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। व्हाट इज एफ डी? दैट वी हैव टू फाइंड, विच इज इक्वल्स टू व्हाट इज एफ जी? एफ जी इज 12, तो ये क्या है? अगेन 12 स्क्वायर है, ओके। प्लस व्हाट इज़ दिस 8 जी डी इज़ 8, तो ये क्या है? 8 स्क्वायर है। यहाँ पर ये पावर पे नहीं, ये बाजू में लिखा रह गया, बट वो 8 स्क्वायर है। इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर इज़ 144, 8 का स्क्वायर इज़ 64। सो 144 प्लस 64 इज़ 208। सो एफ डी अगर चाहिए रहेगा, ये स्क्वायर है, तो एफ डी इक्वल्स टू अंडर रूट 208 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। सो वी हैव 208, तो एफ डी इक्वल्स टू 4√13 यूनिट्स। अब ये कैसे आया? इसको ब्रेक डाउन करने से आया। ये ब्रेक डाउन कैसे होगा वो बताती हूँ मैं अभी। टू 208 है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे करते हैं 208, सो 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 10 एंड अगेन दिस 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, ओके। सो अगर हम लोग इसको जिससे से नीचे लेकर जाते हैं, अभी ये क्या हो जाएगा? 1 2 में से 1 2 बाहर आ सकता है स्क्वायर्स में, और भी आ सकता है। रुको मैं इसको आपको पूरा बताती हूँ इसका कंसेप्ट। टू 208 ना, यहाँ बताती हूँ 208, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, राइट। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, अब 13 आ गया। सो इसमें से एक 2, 2 2 में से एक 2, 2 2 में से एक 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 4, और यहाँ क्या बच गया? 13, तो 4√13 यूनिट्स आएगा, समझा? दैट्स इट। नाउ थर्ड हमें ई एफ फाइंड करना है। ई एफ का है हम लोग का यहाँ पर, तो सेम ट्राइंगल एफ जी ई, ये 90 डिग्री है, तो ये यहाँ पर हम लोग को ये तो मिल गया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस से। सो सेम इन ट्राइंगल ई जी एफ, एंगल ई जी एफ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस इज ई एफ, तो ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई जी का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर। तो ई एफ तो फाइंड करना है, तो ई जी का स्क्वायर इज़ 18 स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ 18 रेज टू 2, दिस इज़ 12 रेज टू 2, ओके। तो वी हैव 18 का स्क्वायर इज़ 324, 12 का स्क्वायर इज़ 144, देन अगेन दिस का एडिशन इज़ 468, तो देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सो विल हैव अंडर रूट 468। सो अगेन यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है? ऐसा मेथड यूज़ करके ये वैल्यू लाना है। ई एफ इज इक्वल्स टू 6√13 यूनिट्स, ओके स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। जिसका क्या है? हम लोग क्या फाइंड करना है? डायगोनल फाइंड करना है, जिसका बहुत ईजी है, सबसे ईजी है, जिसका हम लोग को लेंथ और ब्रेथ दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग को क्या फाइंड करना है? यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, पता है, तो हम लोग यूजुअली क्या करेंगे? इसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इजीली ए सी निकाल देंगे। ए सी क्या हम लोग का डायगोनल है। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज बी द रेक्टेंगल, यहाँ पर गिवन है। तो ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। So now in triangle ABC, angle ABC is equals, angle B equals to 90 degree, angle of a rectangle. So AC square is equals to AB square plus BC square, पाइथागोरस थ्योरम कहता है। So AB क्या है हम लोग का 12, तो 12 का स्क्वायर, और ये BC क्या है 35, तो 35 का स्क्वायर, ओके। तो ये हम लोग का क्या है? 12 स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर है, ओके। तो फिर 12 का स्क्वायर इज़ 144, 35 का स्क्वायर इज़ 1225, इनका एडिशन 1369। तो ए सी क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1369। सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, सो वी हैव ए सी इक्वल्स टू 37। ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको इजीली मिल जाएगा। सो आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए। देयरफॉर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 37 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स। हम लोग को डायगोनल क्या मिला? 37 सेंटीमीटर। अब ये कैसे करते हैं ये भी बता देती हूँ, चलो रूट 1369 हम लोग कैसे लाएंगे? सो 1369, तो 1369 प्राइम फैक्टर मेथड यूज़ होगा इसमें।
स्टूडेंट्स यूजुअली एक चीज़ अच्छे से याद रखो कि जब भी लास्ट में 9 आता है ना, तो हम लोगों को अक्सर सोचना है कि ये कौन से टेबल से बिलोंग करता है। ओके, तो जैसे 9 यूजुअली 49 7 7 से 49 के टेबल में आता है, तो हम लोग उसको 7 से भी चेक कर सकते हैं। तो मीन्स अलग अलग हम लोग पहले तो 20 तक हम लोग को स्क्वायर्स याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो हम लोग 20 के बाद भी हम लोग देख सकते हैं कि हाँ 1400 किसका आता है, तो लगभग 1400 के आसपास जैसे 13 बट ये नियर बाय किसके 1400 के, राइट। 1400 किसी का भी नहीं था, इसके बाद वाला या इसके पहले वाला कोई ऐसा टर्म हम लोग को पता होना चाहिए जिसका पता होना चाहिए। जैसे 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, राइट। 10 का स्क्वायर इज़ 100, 100 का स्क्वायर इज़ 10,000। तो हम लोगों को इट मीन्स दैट फिर 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, राइट। 3 3 9, तो 30 का स्क्वायर 900 हुआ, राइट। तो 30 का स्क्वायर 900 हो रहा है हम लोगों का, तो लगभग 1369 के पास आ रहा है। इट मीन्स ये 30 के बाद वाला ही है, ये सोचना है। और फिर 40 का स्क्वायर क्या आएगा हम लोगों का 1600 आएगा, तो इट मीन्स दैट ये लगभग 1600 से ज़्यादा करीब है। तो इट मीन्स दैट 40 का जब 1600 है तो 39 38 37 में हम लोग चेक करेंगे, तो ऑब्वियसली 39 में तो नहीं आएगा, बिकॉज 39 39 है तो 9 9 81, तो लास्ट में 1 आएगा। सेम 38 का अगर हम लोग चेक करेंगे तो 8 8 64 आएगा, तो लास्ट में 4 आएगा। सेम 37 का जब हम लोग चेक करेंगे तो 37 37 7 7 49, तो लास्ट में 9 आएगा। तो इट मीन्स दैट हम लोग को 37 में चेक करना है दैट 37 मल्टीप्लाई बाय 37 क्या होता है। ओके, एक बार हम लोग को समझ गया कि हाँ 37 मल्टीप्लाई बाय 37 लास्ट में 9 आ रहा है, तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं 1369 आ सकता है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, और एक बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम लोग को ईजिली मिल जाता है। ओके, सो हमेशा हर जगह प्राइम फैक्टर मेथड ही यूज़ नहीं होते, कभी कभी लॉजिकली भी हम लोग को निकालना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये जो एम है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये इक्वल हाफ में दोनों को कट कर रहा है। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो जो पी आर क्यू क्या है, पी आर क्यू ये क्या है 90 डिग्री है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू स्क्वायर, ये जो पी क्यू का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 4 पी एम स्क्वायर, ये 4 टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायर है माइनस 3 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर। तो लेट्स सी हाउ कैन वी प्रूव दैट। सोल्यूशन प्रूफ इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन इन्फॉर्मेशन। तो जो 90 डिग्री है, राइट, हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम इक्वेशन नंबर 1 बोलकर रख दी। 90 डिग्री से हम लोग को यही समझता है, तो हम लोग ये करके रख देते। सो नाउ अभी ये मिड पॉइंट है, राइट, पी एम इज़ द मिड पॉइंट। हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट का भी कुछ है हम लोग, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो क्या होता है दैट आर एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर, राइट। क्यू आर एम क्या होगा, क्यू आर का आधा होगा, मिड पॉइंट मतलब इक्वल हाफ में कट करें, तो आर एम क्या होगा, आधा रहेगा, किसका, क्यू आर का रहेगा। तो एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो ये 2 इधर चला गया, तो 2 आर एम इज इक्वल्स टू क्यू आर, इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे हम लोग। ओके, सो नाउ अभी हम लोग को क्या था, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर है, तो क्यू आर के बदले हम लोग 2 आर एम डाल देंगे, तो 2 आर एम का स्क्वायर। सो फ्रॉम 1 and 2, so now what we're going to get, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 आर एम स्क्वायर, तो इक्वेशन नंबर 3 बन गई। तो नाउ इन ट्राइंगल पी आर एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये पी आर एम भी क्या हम लोग का 90 डिग्री है, गिवन है। तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से आर एम निकालेंगे, तो आर एम विल बी इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, राइट। तो अभी हम लोग को आर एम को रिप्लेस करना है, किससे, पी एम और पी आर से। क्यों रिप्लेस करें पी एम पी आर से, बिकॉज हम लोग को प्रूफ में पी एम पी आर चाहिए, यहाँ पर क्या आ गया, आर एम आ गया। तो हम लोग ने आर एम की वैल्यू पी एम और पी आर के फॉर्म में लाए। अब ये आर एम की वैल्यू हम लोग इसके अंदर थर्ड में सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, सो पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू जहाँ आर एम स्क्वायर है उसके बदले हम लोग पूरा ये डाल देंगे, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो नाउ व्हाट विल गोइंग टू गेट फ्रॉम 3 and 4, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर। तो 4 पी एम स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, तो 4 पी आर में से 1 पी आर गया तो 3 पी आर बचे, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस। तो यही तो हमें प्रूफ करना था दैट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, walls of 2 buildings on either sides of a street are parallel to each other। ये 2 walls of street है, पैरेलल एक दूसरे से। A ladder 5.8 मीटर लॉन्ग is placed on the street, एक लैडर लगाया गया है 5.8 मीटर का।
स्ट्रीट पे सच दैट इट स्टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। तो ये जो हाइट है ये 4 मीटर की है, वो टॉप पे मतलब लोग रीच कर पाए, तो इसलिए एक लैडर लगाया गया 5.8 मीटर का। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड्स ऑफ द स्ट्रीट इट टॉप टचेज द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट 4.2 मीटर। जब ये लैडर को हमने लगाए तो वो क्या कहते हैं, दैट प्लेस इन सच दैट इट टॉप्स जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। मतलब ये जो दूसरे वाले की था तो उसकी एक विंडो तक इन लोग का टॉप पहुंच रहा था, राइट। सो जो हम लोग का जो 4 मीटर है, मतलब मीन्स जो ये जो ए बी की जो हाइट है वहाँ लेडर लगाया गया। सो इट मीन्स दैट वहाँ का जो विंडो है हम लोग का वहाँ यहाँ से मतलब यहाँ के टॉप से यहाँ का विंडो दिख रहा है, वो ये कह रहे हैं। सो एक बार रीड करते हैं वापस से क्वेश्चन। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स मतलब 2 बिल्डिंग की जो वॉल्स है आइदर साइड ऑफ स्ट्रीट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक स्ट्रीट से उसको पैरेलल एक दूसरे से। अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट, मतलब एक लैडर लगाया गया 5.8 मीटर का स्ट्रीट पे सच दैट इट टॉप्स जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग और एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। मतलब इसका जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है मतलब वहाँ पर उसका लैडर लगाया गया, तो वो हाइट क्या दिखा रहा है 4 मीटर। इन ऑल ये बताना चाहते हैं कि इसकी हाइट क्या है 4 मीटर है। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड, और इसके अदर साइड पर अगर हम लोग लैडर को लगाते हैं तो द स्ट्रीट टॉप टचेज द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2 मीटर। यहाँ पर उसकी जो टॉप की जो है टॉप में, तो उसकी विंडो को कहाँ टच करा है 4.2 मीटर की हाइट पे टच करा है। तो फाइंड द विड्थ ऑफ दिस स्ट्रीट, विड्थ मतलब ये फाइंड करना है सी डी या बी सी। ओके, तो लेट्स सी क्या फाइंड करना है। तो सोल्यूशन ए सी एंड सी ई रिप्रेजेंट लैडर ऑफ द लेंथ 5.8 मीटर। तो ये जो हम लोग का ए सी और सी ई है ये लैडर का लेंथ डिफाइन करा है। एंड ए ई एंड ई रिप्रेजेंट विंडोज़ ऑफ द बिल्डिंग। ये ए और ई क्या है, विंडो रिप्रेजेंट करा है बिल्डिंग्स टॉप की। एंड ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द स्ट्रीट बी डी इज़ द विड्थ। ये जो बी से लेकर डी तक है ये क्या है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, बी डी फाइंड करना है। सो नाउ ए बी इक्वल्स टू 4 मीटर एंड ए डी इक्वल्स टू 4.2 मीटर, वो लोग की हाइट है। ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन इन्फॉर्मेशन है, राइट। अब ये ए बी सी है तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री और ये ई डी सी में 90 डिग्री है, बिकॉज ये बिल्डिंग से पैरेलल है ग्राउंड से, राइट। ग्राउंड से पैरेलल तो इट मीन्स ये 90 डिग्री ही रहेगा। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो अप्लाई करेंगे, सो व्हाट विल गोइंग टू गेट 5.8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो 5.8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तो 5.8 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। सो नाउ 5.84 ए माइनस 4 इज़ 1.8 मल्टीप्लाई बाई इसका एडिशन 9.8 इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तो नाउ व्हाट विल गोइंग टू गेट, अभी हम लोगों को क्या करना है, ये पॉइंट हटा देना है। तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करो डिवाइड बाय 100 दोनों करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई करके पॉइंट हटा दिया, डिवाइड बाय 100 भी रहेगा इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। सो नाउ ये 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 98 को 49 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 100 इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। सो नाउ व्हाट विल गोइंग टू डू, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई बाय 49 अपॉन 100 बी सी स्क्वायर। सो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बी सी स्क्वायर का बी सी हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा और 100 का 10 हो जाएगा। सो व्हाट विल गोइंग टू गेट, 3 2 ज़ार 6 6 7 ज़ार 42, तो 42/10 विच इज़ 4.2 सेंटीमीटर। तो ये क्या मिल गया, बी सी मिल गया, राइट। हम लोग सिर्फ ट्राइंगल ए बी सी से हम लोग ने बी सी निकाल दिए। अभी हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ने बी सी निकाल दिए, कौन से, ये वाला बी सी निकाल दिए। क्यों, क्योंकि हम लोगों को बी डी पूरा फाइंड करना है। तो पाइथागोरस से बी सी निकाला, अब यहाँ पाइथागोरस से हम लोग सी डी निकालेंगे, फिर बी सी प्लस सी डी कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, विड्थ मिल जाएगा। सो नाउ सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस जी ई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अगेन हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वल्स टू ये साइड लाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर ये सब्सट्रैक्ट करने के बाद 1.6 मिलेगा, ये ऐड करने के बाद 10 मिलेगा इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर। अगेन सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 16, तो सी डी क्या मिलेगा 4 मीटर। तो सेकेंड टेकिंग, यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट करें हम लोगों ने। फिर नाउ हम लोग को बी डी चाहिए, सी डी भी मिल गया, राइट। हम लोग को सी डी भी मिल गया, बी सी भी मिल गया, राइट। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, बी डैश सी डैश डी। सो व्हाट इज़ बी सी 4.2, व्हाट इज़ सी डी 4, okay. So 4.2 plus 4 is 8.2 meter. The width of the street is 8.2 meters. Okay students, that's it for today. Thank you for attending the lecture.